Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS, we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Avdija Gupta and I have secured All India rank 43 in UPSC CSE 2024. So in this video, I would like to share my optional strategy with you. So my optional was history, and this was the same optional all throughout this preparation. I never changed my optional. Before starting the discussion of my optional, I would tell you a couple of things. Firstly, regarding how to choose your optional, and secondly, regarding if somebody wants to choose history optional, then what are the positives and negatives of it. So firstly, how to choose your optional. I keep telling this, that when you are deciding your optional, you should keep 3 things in mind. So first is the interest. So how does this interest part of it comes is, you have to buy, if you are confused say between 2-3 optionals, suppose it is humanities optional, history, polity, sociology, history like PSIR, sociology, तो आप क्या करें, आप इन तीनों सब्जेक्ट्स की बुक्स को खरीद ले, इनको लेकर के आए और एक हफ्ते पढ़ के देखें या 4-4, 5-5 दिन पढ़ करके देखें. उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, आपका एक फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन से सब्जेक्ट में बन रहा है. दिस इंटरेस्ट पार्ट शुड बी योर फर्स्ट कंसिडरेशन. Second consideration is the guidance available. So when I say guidance includes the material as well as the book list of it. So material में आपका जो market में material है, अगर कुछ coaching है तो वो है available, whether it is there or not. और जो book lists, जो भी books होती हैं basic optional की, वो सब एक कुछ defined है कि नहीं. तो that is second. और last is test series. Test series इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो अवेलेबल रहनी चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनको लिख करके किसी से चेक करवा सके, भले वो आपका पीयर ग्रुप क्यों ना हो. सो बेसिकली योर इंटरेस्ट, द गाइडेंस अवेलेबल एंड practicing tests. These are the 3 things that should be kept in mind before deciding optional. Now when I'm talking about history optional, so I'll tell you the pros and cons of it, because the optional subject एक बहुत ही integral part होता है preparation का. Before I go on, I would say मेरी इस rank के पीछे अगर biggest credit किसी चीज को जाता है, so that is my optional. I secured 303 in my history optional, and I think इस साल वैसे ही सब optionals का cumulative score काफी कम गया है. So humanities ऑप्शनल में 300 प्लस बहुत कम सब्जेक्ट्स में ही आए हैं. हिस्ट्री ट्रेडिशनली एक कहा जाता है कि इट्स अ वेरी लो स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट इफ एनीबडी कैन स्कोर अ 300 प्लस देन सो कैन यू. तो मैंने भी पहले श्रुति मैम के वीडियोस देखे थे, उनको भी 300 प्लस मिला था. लास्ट ईयर नौशीन मैम का भी 300 प्लस आया था हिस्ट्री ऑप्शनल में. तो इसलिए मतलब हिस्ट्री, और इस साल मेरा भी आया है, तो इस साल तो इसका मतलब है आप स्कोर कर सकते हैं टाइम एंड अगेन जितना हमको समझ में आया है. तो प्रोज ऑफ दिस ऑप्शनल इज दैट इट इज अ वेरी सेफ ऑप्शनल. तो हिस्ट्री में आपको बहुत कम नंबर, अनलेस आपने कुछ मतलब आपके कुछ डिजास्टर हो गया पेपर में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या बहुत सारा पेपर छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शनल. आपको बहुत कम नंबर कभी नहीं मिलेंगे इस ऑप्शनल में. दूसरा एक इसका एक प्रो, बहुत बड़ा एक फायदा है, ये है कि अगर किसी का इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. क्योंकि जैसे कई ऑप्शनल है जहाँ पे आपको एक नैग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, कोई भी साइंस सब्जेक्ट्स ले ले, एंथ्रो. पर हिस्ट्री में ऐसा है कि अगर आपको इंटरेस्ट आ गया है और एक बार क्रोनोलॉजी याद होनी स्टार्ट हो गई है, तो ये ऑप्शनल बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है. क्योंकि अगर आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई, तो वहां पे आंसर तो खुद ही लिखना है. हर बार कुछ ना कुछ अलग ही पूछेंगे वो, तो आंसर तो खुद ही लिखना है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफाइंड ऑप्शनल, क्योंकि आपको बस एक क्रोनोलॉजी वगैरह में अगर इंटरेस्ट आ गया है तो आप यू कैन गो थ्रू. अब बात करते हैं कॉन्स की. वैसे मुझे ऐसा कोई कॉन नहीं लगता था, बट इफ आई हैव टू से वन कॉन, दैट इज द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस. तो क्या हिस्ट्री का अगर आप सिलेबस का पेज भी देखें तो शायद 7-8 पेज तक का सिलेबस चलता है. कुछ ऑप्शनल है जो कि सिर्फ 2 पेज के सिलेबस होते हैं.
तो देख करके कई बार बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं कि ये 2 पेज वाले ऑप्शनल करें, काम खत्म। पर ऐसा कुछ नहीं है, सारे ऑप्शनल इक्वली डिफिकल्ट है। कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत वास्ट है, दैट इज डेफिनेटली वन एक कॉन ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल दैट आई वुड से, पर इट कैन बी ओवरकम बिकॉज ऑफ दैट वास्टनेस। क्या होता है, हमारा सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड है, और अभी हम ऑप्शनल एज वी प्रोग्रेस हम नोट मेकिंग की बात करेंगे। तो क्योंकि सिलेबस इतना डिफाइंड है, आपके पास हर वर्ड लिखा है सिलेबस में जिसपे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ यू हैव 1 पेज 2.5 पेज नोट ऑन एवरी वर्ड, उसके बियॉन्ड कुछ आएगा ही नहीं, और अगर कुछ आया तो आप कर लोगे, इसके बेसिस पे वो कर लोगे। सो ये बात रही हिस्ट्री ऑप्शनल की। अब हम चलते हैं, वी मूव फॉरवर्ड। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल में अगेन देयर वर 3 पिलर्स ऑफ माय हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपरेशन। वन वाज सिलेबस वाइज नोट्स। तो मैंने अपने एज आई सेड कि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो मैंने अपने उस सिलेबस को सामने रखा था, और उसके हर एक वर्ड पे, जैसे कि टू बिगिन विद सबसे पहला होता है एंशिएंट में सोर्सेज। तो सोर्सेज में न्यूमिस्मैटिक्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो भी अनअर्थिंग्स होती है उनके ऊपर हर एक वर्ड के ऊपर 1 पेज या 1.5 पेज के नोट्स। वैसे ही आगे चल के जैसे आता है सेकंड अर्बनाइजेशन, उसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं हर एक वर्ड पे 1-2 पेज के नोट्स। मॉडर्न एम्पायर, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एक वर्ड पे नोट्स होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब मॉडर्न एम्पायर एक हेडिंग है, उसके नीचे बहुत सारी सब हेडिंग्स है, तो सब हेडिंग्स पे नोट्स होने चाहिए। सिर्फ हेडिंग पे नोट्स काफी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सब हेडिंग से बनेंगे। अगर ये आपकी एक जॉब पूरी हो गई एक बार के लिए, सो आई थिंक योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन। सो दैट इज सिलेबस वाइज नोट मेकिंग, दिस इज फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर इज पीवाईक्यू। सो पीवाईक्यू इज इक्वली इंपॉर्टेंट। थर्ड पिलर था दैट इज टेस्ट। सो व्हेन आई एम सेइंग पीवाईक्यू को आपको कैसे एनालाइज करना है, अगेन लाइक वी से फॉर प्रीलिम्स and we say for other GS subjects कि PYQ are not just questions which you can practice, get marks and forget. It is your study material. तो जिस तरीके से हम प्रीलिम्स में या मेंस के बाकी सब्जेक्ट्स में एक क्वेश्चन की डेप्थ में जाते हैं कि वो क्यों पूछा, उससे और इर्द गिर्द क्या है उसके बारे में भी प्रिपेयर करें, वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व पेपर्स लेंगे हिस्ट्री के। मैंने क्या रेफर किया था, आई विल टेल दैट ऑल्सो, बट आप कोई भी सॉल्व्ड पीवाईक्यूज का सेट रेफर कर सकते हैं जहाँ पे आपको 20-25 साल के 10 एटलीस्ट 10 हो, बाकी 20-25 हो तो बहुत अच्छी बात है, उतने पीवाईक्यू सॉल्व्ड मिले। उन सब के आप आंसर्स देखें, मॉडल आंसर्स, उनको देख करके आपको वैसे ही आधे से ज्यादा सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और बचा कुछ आपको नोट मेकिंग से हेल्प मिल जाएगी। सो पीवाईक्यू से ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि लगभग सिलेबस के सारे टॉपिक्स को टच अपॉन कर लेते हो आप कि उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और क्योंकि मॉडल आंसर है तो आपको अच्छे से पता है कि उसके आंसर्स किस तरीके के रहेंगे। अब वो आंसर है कि उनको रीड करके भूल जाओ, ऐसा तो है नहीं। अगर आप जो नोट मेकिंग कर रहे हैं, मॉडल आंसर में आपको कोई एडिशनल पॉइंट मिला जो कि आपके नोट मेकिंग के दौरान आपने मेंशन नहीं किया था, फॉर एग्जांपल जैसे इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ से मॉडर्न हिस्ट्री, तो पार्टीशन, आपने पार्टीशन के नोट्स बना चुके थे, पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन आफ्टर मैथ उसके। अब आपने जब आपने मॉडल आंसर देखे, पार्टीशन पे कोई सवाल पूछा है, उसके मॉडल आंसर में कोई हिस्टोरियोग्राफी दे रखी है कि इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये व्यू दिया था, उस हिस्टोरियोग्राफी को आपने अब तक नहीं लिखा है। सो टेक दैट फ्रॉम मॉडल आंसर एंड ऐड दैट ऑन टू योर own notes which you had made. So this is the way your notes will get enriched and it will become different from what is widely being sold in the market and what is something that everybody is using. क्योंकि क्या है ना, optional is something which should be unique, और अगर आपका optional unique रहेगा तभी आपको उसमें नंबर मिलेंगे। वो uniqueness कैसे आएगी? नोट्स भी खुद के होने चाहिए और वैल्यू एडिशन भी खुद का होना चाहिए। वैल्यू एडिशन विल बी दिस मॉडल आंसर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ वैल्यू एडिशन दैट आई कैन सजेस्ट। तीसरा मैंने आपको बता दिया टेस्ट। तो टेस्ट तो वही है कि कोई भी जो भी उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज है आपको उठानी है। देखिए हिस्ट्री के लिए सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की टेस्ट, सेल्फ स्टडी हिस्ट्री एक चैनल होगा जो आपको मालूम है। इट इज नॉट वेरी लाइक नॉट मेनी पीपल टॉक अबाउट इट बट इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो मैंने पीवाईक्यूज जो मैंने कहा था कि मैंने पीवाईक्यूज कहां से रेफर किए थे, तो 25 इयर्स की पीवाईक्यू आई रेफर्ड फ्रॉम सेल्फ स्टडी हिस्ट्री ओनली। और टेस्ट भी मैंने सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की लगाए थे। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो मैंने एक ओनली आईएएस का सृजन का एक प्रोग्राम था वो लिया था, उसमें 6 टेस्ट मिल रहे थे और फ्री मेंटरशिप भी थी, तो मैंने वो लिया था। तो दीज आर सम गुड टेस्ट, बट आई वुड से और भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आप कोई भी टेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री वाज समथिंग दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी in terms of the quality of question and in terms of the model answer of PYQs as well. थे mostly मेरे the 3 pillars of my preparation and what I referred.
एक क्लासरूम कोचिंग की बात करें तो आई नेवर वेंट फॉर एनी क्लासरूम कोचिंग एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी था, तो मेरे नोट्स भी रेडी थे थोड़े ग्रेजुएशन के, और बचे हुए मैंने मॉडल आंसर की हेल्प से सेल्फ स्टडी हिस्ट्री से बना लिए. रिगार्डिंग माई नोट्स, I have posted all my history notes, my optional notes in my on my Telegram channel. तो मैं DKT के साथ अपना Telegram channel शेयर कर दूंगी, वो पोस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में. I would read that out for you also. It is AVDHIJAGUPTA43. So small letters में अवधीजा गुप्ता 43. So this is the link to my Telegram channel. अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के सोर्सेज की. तो सोर्सेज काफी क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि हर चीज के लिए बस एक बुक कर ली, ये वाला एक कर लिया, हो गया, दैट्स इट. I'll tell you what I used. आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. एंशिएंट के लिए इज डेफिनेटली देयर इज वन बुक, उपिंदर सिंह मैम की जो बुक है, विच इज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू अर्ली मेडिवल पीरियड. आप जानते हैं वो मोटी सी इतनी लंबी बुक है, इट इज वेरी थिक बुक. सो दैट इज द वन फॉर एंशिएंट इंडिया, उपिंदर सिंह बुक. अगर बिगिनिंग में आपको ये बुक बहुत टफ लग रही है तो आप आर.एस. शर्मा की जो ग्रीन बुक है, जो आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया वाली बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं फॉर अ जिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड. क्रोनोलॉजी पार्ट आपका रेडी हो जाएगा एंशिएंट का. फिर आपको उपिंदर मैम की बुक रेफर इसलिए करनी पड़ेगी बिकॉज वो बुक हिस्टोरियोग्राफी रिच भी है, और ऐसा कोई सिलेबस का पोर्शन नहीं होगा जो उसमें एक्सप्लेन नहीं है. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सेकंड अर्बनाइजेशन, उसमें गिल्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि शायद श्रेणीज, गहापति सेठी, गिल्ड वाला जो पोर्शन है वो शायद मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते होंगे. इस बार उस पर क्वेश्चन आया था एंशिएंट में, शायद 20 मार्क्स का क्वेश्चन था एंशिएंट के सेक्शन में. तो वो उस बुक में बहुत अच्छे से कवर्ड है, और हिस्टोरियोग्राफी भी है. तो इस तरीके के कुछ स्ट्रे टॉपिक्स हैं जो कि आप सिलेबस से उठा करके ऐसे इग्नोर कर दें, लेकिन उस बुक में सब कुछ दे रखा है. सो आई वुड से टेक दैट बुक. स्टार्ट विद आर.एस. शर्मा if you find that Upinder Singh book very tough, but you have to eventually move to that book and supplement those books historiography in your notes as well. This is for ancient. Medieval के लिए I refer to two sources. One is Satish Chandra's book, which is very important for political and economic history. But जो cultural history का जो part होता है, social cultural history, for that I refer to JL Mehta. अब JL Mehta की 3 books हैं. I refer to a blue book. तो वो उसमें से कौन सी है वो आप बुक्स जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. जो एक ब्लू कलर की बुक है जिसमें आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऐसा कुछ नाम है उसका. सो आई रेफर टू दैट बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर, सोशल पार्ट, एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल पार्ट के लिए सतीश चंद्रा बुक वाज देयर. इन बुक्स में जो फुट नोट्स वगैरह जहाँ पे भी थे, आई यूज्ड ऑल ऑफ देम एक्सटेंसिवली फॉर माई हिस्टोरियोग्राफी. आपको कई लोग इग्नू की जो बुक्स हैं, BA इग्नू मेडिवल में या MA इग्नू मेडिवल में, वो भी यूज करते हैं. आई डिड नॉट यूज देम. यू कैन इफ यू फाइंड इट नेसेसरी. मॉडर्न में आई थिंक एवरीबडी जिनको थोड़ा आइडिया होगा वो जानते होंगे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट शेखर बंदोपाध्याय बुक. सो दैट इज द बुक विच इज लोडेड विद हिस्टोरियोग्राफी एंड मटेरियल ऑल्सो. पलासी टू पार्टीशन इज द नेम ऑफ द बुक. तो इस बुक में मोर और लेस पलासी टू पार्टीशन सब कुछ कवर्ड होता है. इसके पहले अगर आपको कुछ चीज में जाना है, सो आई रेफर टू सेल्फ स्टडी हिस्ट्री मटेरियल, जिससे जो रिबेलियंस जो दे के रखे हैं कि मुंडा अपराइजिंग हो गया, संथाल अपराइजिंग, संताल हुल, और उसके अलावा जैसे पबना रिवोल्ट, ऐसे करके सिलेबस में कुछ रिवोल्ट्स हैं जो कि शायद आपको शेखर बंदोपाध्याय बुक में बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट ना मिले. तो उस केस में मैंने उस चीज़ के लिए सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के मटेरियल रेफर किया था. एक्चुअली सेल्फ स्टडी हिस्ट्री फिल्ड द गैप्स फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स इन बिटवीन, किसी भी चीज़ के अवेलेबल नहीं है, तो आई रेफर टू दैट. बट वन बेसिक बुक फॉर मॉडर्न वॉज शेखर बंदोपाध्याय, और उसमें हिस्टोरियोग्राफी फुटनोट्स में दी है विच यू कैन supplement in your answers. Lastly is world history. World history is that tricky part which I was talking about, जिसके लिए कोई बुक समझ में नहीं आती है. तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो वर्ल्ड वॉर 1 ऑनवर्ड्स तो नॉर्मन लोए की बुक है, हम जानते हैं, और उसमें जो पोस्ट चैप्टर जो बॉक्सेस बने हैं, उन बॉक्स की हिस्टोरियोग्राफी भी मैंने रेफर की थी, उनको यूज किया था जहां पॉसिबल हुआ. वर्ल्ड वॉर 1 के पहले के पार्ट के लिए कोई डिफाइंड बुक लोगों के पास है शायद 1-2, पर मैंने उनको रेफर नहीं किया था क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के जो नोट्स थे, आई सप्लीमेंटेड माय फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विद दोज नोट्स. अगेन आई हैव पोस्टेड दोज नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन रेफर टू दैट फॉर माय वर्ल्ड हिस्ट्री नोट्स. बाकी आप इग्नू के भी रेफर कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का मटीरियल जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है वो भी मैंने कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में रेफर किया था, वो भी रेफर कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट द सोर्सेज दैट आई हैव यूज्ड. तो ये हमने बात करी वर्ल्ड हिस्ट्री की. फिर लास्टली रहेगा मैप.
तो मैप में अगेन मैप इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, दो एंशिएंट हिस्ट्री। मैंने मैप अपने सारे मैप्स पोस्ट कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, पर बियॉन्ड दैट आई वुड से मैप्स के लिए दो सोर्सेज हैं। एक तो सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का जो मैप मटेरियल है वो अच्छा है, आप वो परचेज कर सकते हैं। दूसरा एक राशिद यासीन की बुक है जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, तो मैंने एक वो बुक भी मंगाई थी। और बहुत सारी साइट्स जो कि सेल्फ स्टडी हिस्ट्री में नहीं है वो मैंने वहां से भी सप्लीमेंट की थी। सो दीज आर द टू सोर्सेज फॉर मैप दैट आई कैन टेल यू, एंड बोथ ऑफ देम आर गुड सोर्सेज। मैप काफी स्कोरिंग भी होता है, पर lot of people find very difficult in lot of difficulty in understanding and identifying those places। तो ये तो मैं कहूँगी प्रैक्टिस से आएगा, आप इसमें भी PYQs लगाएं। आप जब पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का, तो आप मैप्स को बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है। फिर आपको रट्टाफाई करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली हो जाएगा समय के साथ। अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू स्टार्ट हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपरेशन। तो एक हिस्ट्री ऑप्शनल एक ऐसा है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि मिनिमम 4 महीने की मेहनत मांगता है और मैक्सिमम 6 महीने। 6 महीने इज गुड इनफ। तो अगर आप 26 के अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो इवन नाउ इफ यू स्टार्ट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर आप इफेक्टिवली से जून से स्टार्ट करते हैं तो पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर में 4 महीने आप जल्दी जल्दी करें तो कर सकते हैं। वरना अगर आप नवंबर दिसंबर तक भी खींचे, हर दिन आप 4 घंटे इस ऑप्शनल को दें, तो आपका एक अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। 6 मंथ्स आर लाइक मैक्सिमम दैट यू नीड फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। एक बार इतना हो गया, उसके बाद आपके नोट्स रेडी हैं। आप एक दो बार उस नोट्स को रिवाइज कर लें दिसंबर जनवरी तक, क्योंकि उसके बाद यू विल स्विच टू योर प्रीलिम्स। एक आध बार उसको रिवाइज कर लें, फिर उसको साइड में रखें। बीच में मन किया तो फेब मार्च में कभी एक बार और ग्लैंस कर लें। उसके बाद आप उसको और नहीं भी करें तो चलेगा। फिर आपका एज सून एज यू आर डन विद योर प्रीलिम्स, यू टेक दीज नोट्स आउट एंड देन यू हैव टू गिव मल्टीपल रिविजन्स। और आपके नोट्स बनाते बनाते इतने शॉर्ट हो जाने चाहिए, इतने कंसाइज हो जाने चाहिए। मेंस के जीएस और ऑप्शनल के बीच में जो हमको 6 दिन का गैप मिलता है, उस 6 दिन के गैप में आपके पूरे नोट्स का एक बार रिविजन हो जाए, इतने शॉर्ट हो जाए ये नोट्स। और बाकी प्री मेंस के बीच में तो आपको नोट्स को पढ़ना भी और टेस्ट भी लगाने, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऑप्शनल के टेस्ट अपने स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपेयर कर रही थी फर्स्ट अटेम्प्ट से, तब थोड़े थोड़े देती थी मैं, पर मैंने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट अपने प्रीलिम्स के बाद ही लगाए हैं, क्योंकि उसके पहले मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा था। तो दिस इज माय 4th अटेम्प्ट बाय द वे, सो आई कुडंट क्लियर फर्स्ट 3 प्रीलिम्स, तो इसलिए वो मैं टेस्ट जोन में आई नहीं पा रही थी। सो एज सून एज आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, आई टुक लॉट ऑफ टेस्ट्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड आई गॉट देम चेक्ड ऑल्सो। तो उससे भी एक काफी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होती है। कोचिंग, तो कोचिंग आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आई डिड नॉट गो फॉर एनी क्लासरूम कोचिंग पर से, पर मैंने कौन सा मटेरियल यूज किया आई हैव टोल्ड यू। सो लास्ट क्वेश्चन वाज अबाउट हिस्टोरियोग्राफी। एक ये थोड़ा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता है कि हम अपने सारे आंसर्स में हिस्टोरियोग्राफी लिखें कि नहीं। आई वुड से नहीं, सब आंसर में इसलिए नहीं लिखनी है क्योंकि कुछ आंसर सिर्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, तो अननेसेसरी उसको हिस्टोरियोग्राफी से बॉम्बार्ड करने से एक एग्जामिनर को भी समझ में आ रहा होता है कि जबरदस्ती ये कैंडिडेट अपना आंसर को बहुत स्कॉलरली दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस क्वेश्चन में आप जो थोड़ा डिबेटेबल है और स्पेसिफिकली पूछा गया है कि इसमें ओपिनियन क्या रहा है, रीजंस क्या रहे हैं, उसमें ही आप हिस्टोरियोग्राफी दें, अननेसेसरी बॉम्बार्ड ना करें। पर जहाँ जरूरत है वहां दें। अगेन आई हैव रिटन मल्टीपल हिस्टोरियोग्राफी इन माई नोट्स एंड आई हैव शेयर्ड इट विद ऑन माई चैनल। सो यस, सो दिस वाज मोस्टली अबाउट हिस्ट्री ऑप्शनल। तो अगेन मेरा एक्सपीरियंस इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ काफ़ी अच्छा रहा। अगर और भी किसी को कोई गाइडेंस चाहिए है हिस्ट्री ऑप्शनल के रिगार्डिंग, तो आप यू कैन मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम एज वेल इन द कमेंट सेक्शन, एंड हियर ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन यू कैन मैसेज। बट आई वुड से हिस्ट्री इज़ वन ऑप्शनल यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है और अगर आप इस ऑप्शनल के साथ कंफर्टेबल है। अनदर थिंग इज यू कैन ऑल्सो रेफर टू द सिलेबस बिफोर डिसाइडिंग वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस optional subject or not. So I would like to conclude this video and I thank DKT for giving me a platform to share my history optional strategy. Thank you.